Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का है? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर की मोस्ट अवेटेड मूवी नीरजा के सॉन्ग लॉन्च पर हमने स्पॉट किया सोनम को, जहां सोनम ने इस फिल्म के म्यूजिक की खूब तारीफ की। जीते हैं चल is the first song that was out and there are 4 songs in the film. 4 right? 4 songs. There's जीते हैं चल, there's आंखें मिलाएंगे डर से, which is right now my personal favorite. Then there's the mother song. What is it called? The mother song? ऐसा क्यों माँ? ऐसा क्यों माँ? And then there's a love song which we'll be launching very soon. So there are 4 songs and they're all situational, they're all inspirational. For me, Aankhein Milayenge Dar Se is the voice of what I think the youth in India are feeling right now. That we don't want to be scared anymore, we want to face everybody and everything and have an opinion like we do on everything. So I think he gets the pulse and he is, I think, one of the most important poets of our time right now. So I'm very, very excited that Prasoon sir has done 3 of my films. Yay! 30 खबरें फटाफट। इंटॉलरेंस के इशू पर आमिर और शाहरुख को बोलना पड़ा था काफी महंगा, और अब सोनम ने आमिर और शाहरुख खान के इंटॉलरेंस पर दिए गए स्टेटमेंट पर बात करते हुए कहा कि बी टाउन के इन दोनों खान्स को अब खुलकर अपनी बात रखने से डर लगेगा। That's what's scary. That's exactly what I said. You know, recently at a conclave where they asked me to talk. I don't know why they keep calling me to talk about things. Obviously, they know I make good copy. But I was like, just imagine the way we're reacting to someone like a Shah Rukh Khan or an Aamir Khan or anything. They will be afraid to say or talk about things because of the negative reactions. We should be supportive of people who have opinions, good, bad or ugly. Everybody should have a right to speak. And I feel like no matter what, like I went through this even 2-3 years ago. I said something and I was trolled like on another level. Not 2-3 years ago, it was actually a year ago. I don't know why I feel like it was so long. But then at the end of the day, I was like, if I have this platform, I have this voice, people actually listen to what I have to say. I'm going to keep doing it no matter what. Eventually somebody will hear what I have to say. 30 खबरें फटाफट। फरहान अदुना के ब्रेकअप से उनकी पूरी फैमिली को लगा है झटका, लेकिन अब अदुना आजमी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अदुना के साथ वो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप शेयर करती हैं। ऐसे में फरहान अदुना के ब्रेकअप के बाद उनके रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर ने साफ कर दिया है कि वो करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ रोमांस करते नजर आएंगे, और साथ ही रणबीर ने ये भी साफ किया है कि ऐश के साथ उनकी केमिस्ट्री को देखकर सभी हैरान रह जाएंगे। हम आपको बता दें कि ऐश और रणबीर के एज डिफरेंस की वजह से ऐसी स्पेकुलेशन की जा रही थी कि इनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन शायद उतनी मजेदार न दिखे। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत धोनी की बायोपिक पर बन रही फिल्म के लास्ट शूटिंग स्केड्यूल के लिए हो गए हैं केप टाउन रवाना। इस फिल्म की सिर्फ 3 दिनों की शूटिंग बची हुई है और धोनी साक्षी वाला चंक किया जाएगा शूट, और जूम को एक्सक्लूसिवली सुशांत ने दी अपनी स्केड्यूल की जानकारी। Heading to Cape Town for the shoot. Excited? It's the last 3 days of the shoot. Okay, last week. So yeah, we're shooting a very important portion with, like MS is with Sakshi, so I'm with Kiara. So yes, so last 3 days very excited. 30 खबरें फटाफट। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन मिर्जिया के जरिए लोगों को दिखाएंगे अपना चेहरा, पर जूम के कैमरा से कोई भला कैसे बच सकता है? आज जूम आपको दिखाएगा कि कैसे हमने मूवी देखने आए हर्षवर्धन को कर लिया कैप्चर। ये देखिए हर्षवर्धन का बियर्ड लुक और कैसे हर्ष खड़े हुए हैं टिकट के काउंटर पर टिकट लेने के लिए। हालांकि हुडी के जरिए हर्ष ने खुद को छुपाने की कोशिश की, पर सब बेकार था। Later on the show, SRK का इंटॉलरेंस पर दिया गया बयान रईस के लिए बना मुसीबत का सबब। 30 खबरें फटाफट।
सुपरस्टार बादशाह खान को स्पॉट किया गया उनकी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए। ये पिक्चर्स है शाहरुख खान के अपनी फैमिली के साथ लंच करते हुए। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं शाहरुख खान अपनी वाइफ गौरी और बेटी सुहाना के साथ नजर आ रहे हैं और इन सब के साथ उनका छोटा बेटा अब्राम भी मौजूद है जो डैड SRK के करीब बैठा है। 30 खबरें फटाफट। रणबीर और कटरीना ने किया एक दूसरे को अवॉइड। रणबीर और कटरीना दिल्ली में चल रहे ऑटो एक्सपो 2016 में डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट करने गए थे, लेकिन यहाँ रणबीर और कटरीना ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उन्हें एक दूसरे का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ऑटो एक्सपो 2016 में जहाँ रणबीर सुबह 11:30 बजे पहुँचे, वहीं कटरीना वेन्यू पर 12:30 बजे आए। यानी रणबीर के एग्जिट के ठीक बाद कटरीना ने ली एंट्री। 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर खान और रणवीर सिंह आएंगे साथ नजर। सोर्सेज की माने तो करीना कपूर खान फिल्म सदमा के रीमेक में श्रीदेवी का रोल निभाती नजर आएंगी, वहीं रणवीर सिंह कमल हसन के रोल में दिखेंगे। 30 खबरें फटाफट। क्यों है करीना कपूर खान सोशल मीडिया से दूर? क्यों करीना सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए अपने फैन से नहीं करती है इंटरैक्ट? वेल, इस क्यों का जवाब करीना ने फाइनली दे दिया है। करीना ने रिसेंटली सोशल मीडिया को लेकर कुछ ये कहा, सोशल मीडिया इज लाइक अ ड्रग। इफ यू हैव 5 million followers, you want to get 10, then 15. It's never enough. Then there's so much scrutiny online and everyone has to have an opinion on everything. I am a private person and I'm happier to be out of it. 30 खबरें फटाफट। ऑटो एक्सपो 2016 में आलिया और विराट कोहली आए एक साथ नजर। आलिया और विराट यहाँ एक कार ब्रांड को प्रमोट करने आए थे। आलिया was dressed in an asymmetrical gown, hair tied in a ponytail, pink lips and silver stilettos. Virat looked dapper in a blue formal jacket teamed with black tee and trousers and paired with brown shoes. Boy, the two made for a stunning couple. 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर ने एक मैगजीन के लिए करवाया फोटोशूट। इस फोटोशूट में करीना बेहद खूबसूरत लग रही हैं। 30 खबरें फटाफट। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल सोनम कपूर, जो कि बेखौफ होकर अपने दिल की बात को खुलकर पब्लिकली सबके सामने कहने के लिए है फेमस, उन्हें भी लगता है डर, और अपने डर के बारे में पहली बार सोनम ने खुलकर की बात। Any fear you want to overcome? Lots of fears, yeah. एक अगर बोलना चाहें। A fear of not having an. I don't want to ever not have an opinion on something. मैं actually honestly अभी दिखाई नहीं देता, but I was a very shy person. मैं बहुत ही shy थी. I'm not very good at public speaking. मुझे स्टेज फ्राइट बहुत है। एक्चुअली 8 साल पहले मैंने एक स्टेज परफॉर्मेंस दी थी और उसके बाद आई हैव नेवर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज टिल आई डिड Stardust or something. I did in Stardust. I danced again after 8 years, and that's only because I did Nija. And I realized that it's a small thing. It's going up on stage and facing people and performing or dancing or talking on stage. I don't know if you've never heard me host a show or danced on stage or any of those things. And only because I did Nija, I realized, यार मैं कौन हूँ यार, मैंने क्या किया लाइफ में। This girl faced fear and she saved life and she realized she was fearful for her life and she still did it. What am I fearful for? कि लोग क्या कहेंगे? And I think that's everybody's biggest fear. अब मैंने एक कैंपेन किया है Fear versus Nija, और I'm telling you 90% of the people who have been tagging me and tagging Fear versus Nija are all afraid to be themselves. 30 खबरें फटाफट। अभिषेक बच्चन का है 5 फरवरी को बर्थडे, एंड टू द सोर्सेज अभिषेक इस बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे इंडिया से बाहर मालदीव्स में, और बेटर हाफ ऐश्वर्या भी करेंगे जूनियर बच्चन को मालदीव्स में उनके बर्थडे सेलिब्रेशन पर ज्वाइन। बताया जा रहा है कि इस बार अभिषेक का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा काफी ग्रैंड। इस साल अभिषेक की हाउसफुल 3 होगी रिलीज, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार और रितेश देशमुख दिखाई देंगे। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान का फेक वोटर आईडी कार्ड मिला। जी हां, इलेक्शन कमीशन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बनाया गया है सलमान खान का फेक वोटर आईडी कार्ड। जी हां, इस इशू का खुलासा तब हुआ जब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के दौरान एक वोटर इस आईडी कार्ड के साथ वोट देने आया, जिसकी वोटर आईडी कार्ड में सलमान खान की पिक्चर और उनका नाम मौजूद था।
सिर्फ सलमान की एज इस कार में डिफरेंट थी। इस वोटर को इस कार के साथ अथॉरिटीज ने वोट देने नहीं दिया और इस कार को कर लिया सब। 30 खबरें फटाफट। फेमस कोल्डप्ले वीडियो में सोनम कपूर के ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस पर उन्हें किया जा रहा है ट्रोल और इस कोल्डप्ले वीडियो में इंडिया को भी गलत तरीके से दिखाने की वजह से काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और सोनम से जब इस वीडियो पर पूछा गया सवाल तो क्या कहा, ये सुनिए। It will be a chartbuster after एक और chartbuster which is Coldplay. People are enjoying it. Your fans are enjoying What do you it. think of the song? Amazing, right? Amazing. Yeah, people are enjoying it, but there are certain people who have not liked the song. I tell you, I'll answer this in one statement. There's something amazing that I read on Facebook. The most Indian thing about Coldplay's video is the reaction to it. Yes. 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो हेमा मालिनी की म्यूजिक वीडियो को बिग बी और धर्मेंद्र लॉन्च करते नजर आ सकते हैं। हम आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने इस म्यूजिक वीडियो को अपनी आवाज दी है। साथ ही इस म्यूजिक वीडियो को वो खुद प्रोड्यूस कर रही हैं। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र और बिग बी को इस म्यूजिक को लॉन्च करने के लिए स्पेशल इन्विटेशन भेजा है। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेस की माने तो टाइगर श्रॉफ अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पटानी को दे रहे हैं डांस ट्रेनिंग। जी हाँ, खबर आ रही है कि दिशा और टाइगर ने मुंबई के एक स्टूडियो को रेंट किया है जहां टाइगर दिशा को डांस सिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि खबर आई थी कि फिल्म हीरोपंती में कृति सनोन से पहले दिशा का नाम फाइनल किया गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर दिशा को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वैसे अब टाइगर दिशा के साथ एक म्यूजिक वीडियो की तैयारियां कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान को अभी तक अपने इंटॉलरेंस बयान का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जी हाँ, रिसेंटली गुजरात के भुज में अपनी फिल्म रईस की शूटिंग करने पहुंचे एसआरके को विरोध का सामना करना पड़ा और यहाँ उनकी फिल्म की शूटिंग रुकवा दी गई। हम आपको बता दें कि एसआरके अपने इंटॉलरेंस बयान पर पहले ही माफी मांग चुके हैं और साथ ही उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर और रणबीर कपूर आजकल स्मोकिंग छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और रिसेंटली अपनी इस आदत को छोड़ने के लिए अर्जुन और रणबीर ने एक स्पा में साथ जाकर एक खास इंजेक्शन लिया जिससे कि वो अपनी स्मोकिंग की आदत को छोड़ सके। हम आपको बता दें कि रणबीर कपूर इससे पहले भी 2015 में सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप, विराट कोहली की पार्टी में नजर नहीं आई अनुष्का। खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत को जिस प्रोडक्शन हाउस ने लॉन्च किया था उसी के साथ सुशांत ने तोड़ लिए थे अपने रिश्ते। कई तरह की खबरें बाहर आ रही थी पर जूम पर सुशांत ने किया है कबूल कि क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते उन्होंने किया है उस प्रोडक्शन हाउस से किनारा एंड नथिंग इज पर्सनल बिटवीन देम। It's just that we were together for 3 years. That was decided earlier, and it's not about somebody being right or somebody being wrong. It's just about two teams working together and thinking alike. So if it doesn't happen, then you just part ways. It's nothing against YRF. YRF loves me still. So yeah, hopefully. 30 खबरें फटाफट। कृति सनोन की डिमांड दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। न्यू कमर एक्ट्रेसेस में कृति को माना जा रहा है सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग। एक और जहां कृति अच्छी फिल्में कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर ब्रांड्स भी उन्हें अपना चेहरा बनाने के लिए बेताब हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रांड उन्हें दे रहे हैं मुंह मांगी कीमत। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि कृति ने हाल ही में साइन की है एक ब्रांड डील जिसके लिए उन्हें काफी बड़ा अमाउंट दिया गया है। यही नहीं, इस ब्रांड को पहले बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस एंडोर्स कर चुकी है। 30 खबरें फटाफट।
कंगना रनौत के बढ़ गए हैं नखरे, दूसरों के वक्त की नहीं रही कंगना को कोई कदर। जूम को सोर्सेज से पता चला है कि कंगना एक ब्रांड के लिए करने वाली थी शूट और अपनी डेट्स भी दे दी थी। ब्रांड ने पूरी तैयारी कर ली और सेटअप भी लगा दिया, पर कंगना नहीं आई। मालूम करने पर पता चला कि बॉलीवुड की इस क्वीन को आ गया था फीवर, जिसके चलते वो नहीं आ पाई शूट पर। लेकिन कंगना की मैनेजर उनकी बहन ने इस बारे में ब्रांड को नहीं बताया और ब्रांड वाले करते रहे उनका इंतजार। सुनने में आया है कि कंगना के इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर के चलते ब्रांड उनके साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात सोच रहा है। 30 खबरें फटाफट। सुशांत की एक नोन प्रोडक्शन हाउस से अलग होने की वजह रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को भी माना जा रहा था। कहा जाने लगा कि ये प्रोडक्शन हाउस रणवीर और अर्जुन को दे रहा है सुशांत से ज्यादा प्रायोरिटी। आपको बता दें कि इन तीनों ही एक्टर्स को इस प्रोडक्शन हाउस ने किया था बॉलीवुड में लॉन्च, पर रणवीर और अर्जुन की वजह से डिफरेंसेस के रीजन को सुशांत ने पूरी तरह से नकार दिया। I got Diwakar's film, I got Shekhar Kapoor's film, so I don't think so. 30 खबरें फटाफट। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की ब्रेकअप की खबरें जहां आजकल न्यूज में जोरों शोरों से चल रही हैं, वहीं अब एक और फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर आ गई है, जहां विराट कोहली हरभजन सिंह और गीता बसरा के साथ सिडनी में लंच करते नजर आए। उन्होंने फोटोग्राफ के साथ पोस्ट किया, मिस सिडनी ऑलरेडी, स्पेशली डार्लिंग हार्बर, व्हाट अ स्पॉट, एब्सोल्युटली लव इट, गुड टाइम्स। ये फोटोग्राफ तब सामने आ रही है जब इस तरह के रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अनुष्का की शादी से इनकार करने के बाद इन दोनों का भी ब्रेकअप हो सकता है। 30 खबरें फटाफट। सेल्फी क्वीन के नाम से सोशल मीडिया पर मशहूर सोनाक्षी सिन्हा, जो जीरो फिगर में बिलीव नहीं करती हैं और अपनी तरह तरह की सेल्फी शेयर करती रहती हैं, उन्होंने अब एक और सेल्फी डाला है जिसमें वो खुद को मिरर में क्लिक करती नजर आई और डेफिनेटली कूल लग रही हैं। लेसन्स फॉर गर्ल्स जो जीरो फिगर की दीवानी है। वैसे फिलहाल सोनाक्षी अकीरा और फोर्स 2 की शूटिंग में बिजी है। 30 खबरें फटाफट। बिग बी को एक चीज का मलाल है कि उनके जमाने में एक्ट्रेसेस इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी जितनी आजकल हैं। बिग बी रिसेंटली पहुंची दिल्ली में एक अवार्ड सेरेमनी के लिए, जहां उन्होंने दीपिका को बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड दिया। वहां उन्होंने अवार्ड देते हुए कहा, टू बिगिन विद दे आर टॉलर, दे कम वेरी वेल प्रिपेयर्ड, आई लव दैट, मेनी टाइम्स वी गेट टू लर्न फ्रॉम देम। 30 खबरें फटाफट। जहाँ दीपिका को इस साल अपनी मूवी पीकू के लिए हर जगह सराहा जा रहा है, वहाँ दीपिका है कि प्रियंका को कॉपी करने में लगी हुई है। ये पिक्चर देखिए जहाँ दीपिका खुद को मिला अवार्ड फ्लॉन्ट कर रही हैं और ये काम उन्होंने लगभग उसी स्टाइल में किया जैसे प्रियंका ने लास्ट मंथ उनको मिले पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए किया था। वेल, वी आर हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू और हम बस इतना ही कहेंगे, सेम पिंच। 30 खबरें फटाफट। जहां शाहरुख खान का कल एक फोटोग्राफ वायरल हो रहा था जब वो लंदन एयरपोर्ट पर अब्राम के लिए शॉपिंग करते नजर आए, वहीं अब उनका एक पिक्चर शेयर किया जा रहा है जिसमें वो गौरी और अब्राम के साथ लंच करते नजर आ रहे हैं। वैसे इन पिक्चर्स में ये भी नजर आ रहा है कि उनको मिल रहे पब्लिक अटेंशन के बाद ज्यादा देर तक आराम से लंच नहीं कर पाए ये लोग। दूसरी पिक्चर में सुहाना और गौरी भी नजर आ रही है। 30 खबरें फटाफट। एस राजामौली की लास्ट ईयर आई एपिक मूवी बाहुबली, जिसका सीक्वल अगले साल तक आने की रिपोर्ट्स हैं, अब उसका एक कॉमिक्स रिलीज किया जा रहा है। जहां इस मूवी के कंक्लूजन का इंतजार सबको है, वहीं इसके लीड एक्टर प्रभा कहीं भी इसकी सक्सेस को ब्रैग करते नजर नहीं आते। रिपोर्ट्स है कि उनको रोज कई इवेंट्स के लिए इन्विटेशन आते हैं, मगर वो करते हैं सबको अवॉइड। यहाँ तक कि उनको कई इवेंट्स में पैसों की पेशकश भी की जाती है, जिससे भी वो कर देते हैं इनकार। 30 खबरें फटाफट।